سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. جی مجھے بتلائیے کہ پچھلی کلاس میں ہم پریکٹس کر رہے تھے حروف تہجی کی. تو جن لوگوں نے پریکٹس نہیں کی پچھلی کلاس میں وہ اپنا ہینڈ ریز کیجیے. جی جلدی کریں ذرا کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں. جی شروع کریں نیلم آپ شروع کریں. جی السلام علیکم سر. وہ سلائڈ نہیں ہے یہاں، آپ شکر. چلے میں شیئر کرتا ہوں. جی چلیں شروع کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم. ف یعنی جی جیسے سانس نکلتا ہے نا ایسے آواز سانس کی جیسے آواز ہوتی ہے اس طرح کر کے آواز جاری لگے یہ والی نرمی کے ساتھ. ف ثا ہم، جیم ہا خا آپ نے پڑھا ہے دا. جیم. جیم ناک میں آواز نہیں لے کے جانی. جیم ایک ہے جیم اور ایک ہے جیم. آپ نے پڑھنا ہے جیم. ٹھیک ہے اوکے اوکے. جیم نہیں پڑھنا. جی جیم جی ابھی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ہا خا دال ذال را زا میں نے پچھلے سین. سبق میں بتایا تھا کہ جب آپ نے کسی حرف کو موٹا کرنا ہے تو ایسا شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی جو آپ کو حرف کو موٹا کر رہی ہوں وہ منہ کے گول ہونے کی وجہ سے، بلکہ آپ نے زبان کو اوپر اٹھانا ہے تالو والی سائڈ سے. تالو والی سائڈ پہ جو زبان کی جڑ ہے اس کو جیسے اوپر اٹھائیں گے تو وہ حرف خود بخود موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. رو جی جی. رو سیدھا منہ کھولنا ہے. را را جی سر میں کر رہی ہوں گول نوٹ. ایسے لگتا ہے کہ لیکن میں نہیں کر رہی ہوں. میں میرر میں چیک کر رہی ہوں. را جی 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 پڑھیں. زا سین. آپ کو پتہ ہے حروف صفیریہ ان کی جو ہے وہ سی ٹی کی سی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو جی زا بھی اس میں شامل ہے تو اس میں یہ والی آواز آئے گی نا. ز- زا یہ والی آواز نہیں زا آ رہی. ز- از- ز- زا. اوکے دوبارہ پڑھ دیں سر ایک دفعہ. از ز- 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 ٹھیک ہے. زا زا جی پڑھتے جائیں جلدی سین کریں. سین شین. سین 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 سین. یہ سیٹی کی آواز ضروری ہے. اگر آپ اس میں سیٹی نہیں رکھیں گے تو یہ جو اس سے ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں ان کے ساتھ مل جائیں گے. اب آپ اس کو سا اگر سیٹی میں رکھیں گے تو کیا پتا چلے گا کہ پڑھنے والے نے سا پڑھا ہے یا سین پڑھا ہے. ٹھیک ہے تو فرق جی کے لیے ضروری ہے، فرق کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ اس کو بھرپور انداز میں ادا کریں. سیڑھی کے ساتھ بھرپور سیڑھی کے ساتھ. سین جی بڑے. سین جی شین صاد مد ہوگی مد. ضاد. ایک تو اس کو پوری تفہیم کے ساتھ بڑھائیں گے. تیسری دوسری چیز یہ ہوگی کہ مد ہوگی، بھرپور مد ہوگی 4 الف کے برابر. ٹھیک ہے 4 الف
तीन अलफ या चार अलफ के बराबर मद होगी। सौद, सौद। मोटा पढ़ना है, सीटी का ख्याल रखना है। तीसरी चीज आखिर में कलकला होगा, ठीक है। चौथी चीज मद होगी। इन चीजों का ख्याल रखते हुए सौद को अदा करना है। सौद। صاد सीटी। ظا सौद। सीटी सीटी सीटी। सौद। صاد ظا ضاد वाद नहीं पढ़ना, दाल की तरह नहीं पढ़ना, बल्कि वाद, वाद। जी। وا और वाद भी नहीं पढ़ना, बल्कि पढ़ना वाद, वाद। जी। جی ضاد تو طا ओ, ظا ओ, ओ। मोटा खूब طا मोटा करें इसको। रूह मुस्तालिया मुतबिका में से है। جی जी। طا ظا عين غين فا قاف कौफ, كاف कौफ। जो जुबान की जड़ है ना वो ऊपर को उठेगी, तो खुद ब खुद सही कौफ जो है ना वो अदा होगा। कौफ, कौफ। ठीक है। قاف جی जी। كاف لام ميم نون واو واو، وا- واو। واو ها همزة يا हमजा, हमजा। हा, मीम सा, हा। तो सबको वाजे करना है। हमजा, हमजा। همزة يا जी। उसके बाद गजाला। जल्दी कीजिए जरा। أعوذ بالله من الشيطان औज़ु الرجيم बिल्लाहि नहीं पढ़ना, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم पान بسم रजीम, पान रजीम नहीं पढ़ना, मिनश शैतान रजीम। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم यर्रहमान, यर्रहमान। रा को खूब मोटा करें। यर्रहमान यर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم ألف जी। با تا ثا ये देखिए ऊपर क्या جيم लिखा हुआ है, ये पहले ये जो ऊपर पढ़ा है ना, लिखा हुआ है ना, ये पढ़ें सबसे पहले, तरीका पढ़ें। ये क्या लिखा हुआ है इसको पहले पढ़ें। अलिफ और हमजा तरीका, को बगैर खींचे पढ़ें। अलिफ और हमजा को बगैर खींचे हम्म, दो हरफी को थोड़ा सा खींचकर और दो तीन हरफी से हरफी क्या को मुराद है? दो हरफी से क्या मुराद है? आप पिछली दो अलिफ के क्लास में बराबर मौजूद थी? आप पिछली क्लास में जी मौजूद थी? तो जी मैंने बताया था दो हरफी से क्या मुराद है। जी, किसके इल्म में है कि दो अरबी से क्या मुराद है? कौन सर इसको मैं बताऊं एक्सप्लेन करेगा दो अरबी से? सिर्फ हाथ खड़ा किया करें, जो जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। ये पता चले ना किस किसको पता है, फिर उनमें से मैं किसी एक से पूछ लूंगा। जी। चलें जी। हुस्ना अंजुम बताएं, क्या मुराद है दो इनको अरबी से? दो हरफ की मिकदार के बराबर, इनके दो हरकत या दो हरफ की मिकदार के बराबर नहीं, ये पढ़ेंगे। ये ये वो एक अलग चीज है, उसकी मिकदार कैसी हो, कितनी होगी? ये लिखे दो हरफी को। दो हरफी किसे कहते हैं? दो हरफी कौन थोड़ा सा सा है खींच कर इनमें से, अगर जो हरूफ दो ताजी है? हरफी मीन्स नहीं नहीं, ये नहीं 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 नहीं, जी नहीं। हाँ जी, ये दो वजाहत हरफी करनी है। दो हरफी होता कौन सा है, कौन सा है इनमें से, दो कौन सा दो हरफी है जो हरूफ ताजी बा, लिखे हुए हैं? ये है दो बा हरफी और जो अलिफ है, बा है दो हरफी, ता ता ये दो हरफी हैं।
जी ठीक है, शुक्रिया जी। आगे, और तीन हरफी को दुगना खींच कर पढ़ेंगे, जैसे जीम, ये तीन हरफी है, दाल, दाल, सीन, शीन, ये तीन हरफी हैं, ठीक है। इनको उनसे दुगना खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ को बिल्कुल कम, दो हरफी को थोड़ा सा ज्यादा खींच कर पढ़ेंगे, जैसे अलिफ बिल्कुल कम, अलिफ और हमजा को अलिफ हमजा, ठीक है। और बा थोड़ा सा खींच कर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और तीन हरफी जैसे जीम, शीन, उनको दुगना खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मद हो रही है। जी, शीन, दाल, दाल। चलें, और ये मिकदार का भी ख्याल रखना जरूरी है। ये नहीं है कि मिकदार की कोई अहमियत नहीं है, आप उसको जैसे चाहें अपनी मर्जी से पढ़ लें। जी पढ़ेंगे। अलिफ, बा, ता, था, जीम, हा, जी, जी, पूरी बात करें, जी, चार अलिफ के बराबर। और इस ये कैसे, हम जी, इसकी मिकदार को कैसे, ये कौन बताएगा इसकी मिकदार को कैसे? मतलब अगर चार अलिफ, चार अलिफ के बराबर हमने पढ़ना है, चार हरकत के बराबर अगर मद करनी है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? कैसे उसको पहचानेंगे कि ये चार अलिफ हो गया? कौन बताएगा जी? किसी के इल्म में है? मद की मिकदार को कैसे मापते हैं, उसको किस पैमाने पे जांचते हैं जी? महमूद खान, महमूद जी खान सर, बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, है ना। वालेकुम चार मकदार सलाम। को जो है वो, ये जो है उंगली को जो है, अगर हम मान लें कि खुलने में जो है एक जो हम्म, वक्त लगता है ना, उसको हम एक जी मकदार के करीब करते हैं। तो उसी, शुक्रिया। और बंद करने की भी जो है इसको, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि एक सेकंड जो है, या 2 सेकंड का जो लम्हा है ना, या चार जी सेकंड का जो लम्हा है, वो भी जो है उस मकदार में काउंट आ जाता ठीक है। इसका आसान और बिल्कुल बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी मुट्ठी की चार उंगलियां, जैसे आप एक बनाते हैं ना, अपनी हाथ को बंद कर लेते हैं, मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, ऐसे बंद कर लें, और जी तो खोलें, ऐसे बारी बारी चार उंगलियों को खोलें। तो जब आप चार उंगलियां खुल जाएंगी, तो आपकी चार अलिफ के बराबर, चाहे चार हरकत के बराबर जो है वो मद हो जाएगी। जी, जी। चलें। जीम, हा, खा, दाल, राल, नरमी के रा, साथ, नरमी के साथ, नरमी के साथ उसको पूरी जो है ना, वो आप देखें, एक जैसी आवाज, मैंने पहले बताया था पिछले सबक में कि जो हरूफ एक जैसी आवाजों वाले हैं, उन पर आपने खास खास तवज्जो देनी है। इसकी वजह ये है कि अगर उन पर खास तवज्जो नहीं देंगे, तो आवाजों से सिर्फ फर्क वाजे करना है हमने, जो भी उनका फर्क है वो आवाजों से फर्क वाजे होगा। तो खास तवज्जो नहीं देंगे तो वो एक जैसे लगेंगे। अब अगर जाल, जा और ज़ाद, ज़ा, इनमें फर्क नहीं करेंगे अपनी आवाजों से, तो जब आप कुरान मजीद को पढ़ रहे होंगे, तो कैसे पता चलेगा एक सामे को, सुनने वाले को, कि आपने दाल पढ़ा है, जा पढ़ा है, वाद पढ़ा है, वाह पढ़ा है, ठीक है। तो इनमें खास तौर पे अब दाल और जा, इन दोनों की अदायगी में फर्क होना चाहिए। दाल नरमी के साथ अपनी जो जुबान है ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से लगा के, दाल, 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 जी। रा, राल, रा, रॉ, जा, रॉ, मोटे हरूफ, मोटे हरूफ को खूब मोटा करके, रॉ, रॉ, रा, जा, ज, सी, सीटी है, जा के अंदर सीटी है, ठीक है। ज, जा, ये आवाज आनी जा, चाहिए, ये वाली, ज, ज, जा, जी, सीन, जी। शीन, साद, मोटा मोटा, आप दा, देखें, सीन, सीन, स्वाद, इनकी आवाज एक जैसी है, ता, सीन, स्वाद, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक जैसी मिलती जुलती आवाजों वाले हरूफ, लेकिन हमने मखरज से खूब अच्छी तरह अदायगी करते हुए इनको वाजे करना है। सा नरमी के साथ, जैसे नफस सांस जारी रहता है उस तरह करके। सीन, सीन खूब सीटी के साथ, लेकिन उसके अंदर मोटाई नहीं है। सौद, इसके अंदर सीटी भी है
اور اس طرح اس کو موٹا کر کے بھی تفخیم کے ساتھ بھی پڑھیں گے. صاد. صاد. جی. صا صاد ہم. صاد واد. صا واد. ال. واد. جی. صاد جی. صا وا نہیں ذا کرنا. قا. 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 صا قا. ذا قا موٹا کر کے. قا. طا جی. ذا وا. عی طا طا جی. ذا جی. جی پڑھیں آگے. عین غین فا قاف کاف لام لام ناک میں نہیں میم آواز لے کے جانی. لام. لام ناک میں نہیں لے کے جانی میم آواز. لام. لام. لام آپ پڑھتی ہیں لام. لام نہیں ہے. لام. لام. لام آگے پڑھیں. لام میم مین نون نہیں ہے. می. می می. می میم جی. جی پڑھیں. نون واو ہا حمزہ یا حمزہ. حمزہ. حمزہ یا جی. اور کوئی رہتا ہے؟ جی نیلم آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے. جی سر میں نے جیسے یہ دودھ لفظ ہے میں اس کو جب پڑھی تھی دودھ تو وہ جو حافت اللسان ہے وہی ہم دواہی کے اولیاء کو جب لگاتے ہیں نا تو میں دودھ اگر جی. لگا رہی ہوں میں دودھ ہی پڑھ رہی ہوں تو دال ساؤنڈ آ رہی ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ غلط ہے پھر میں اس کو واد پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں تو میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ مجھے ایکچولی میں دودھ پڑھنا چاہیے یا واد پڑھنا چاہیے آپ اس کے مخرج سے اس کو ادا کریں. ٹھیک ہے. تو میں اور اگر مخرج سے مخرج جی جب میں مخرج سے مخرج پہ ادا لگا کریں. باقی اس بات سے نہ پڑھیں گے اس کو داد پڑھیں گے یا واد پڑھیں گے وہ آپ اگر تحقیقی بحث میں جانا چاہیں تو اس میں جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہی موقف ہے کہ اس کی جو آواز ہے وہ دعا جیسی ہے نہ کہ دال جیسی ہے. ٹھیک ہے. باقی آپ دیکھ لیجئے. جی ٹھیک ہے. چلیں جی. علیشا آپ نے سنا دیا ہے یا سنانا ہے ابھی؟ آپ نے ہینڈ ریس کیا ہے. جی. سنانا جی. جی سنائیں. ہے تعود اس میں کرو شروع سے. جی الف با تا تا جیم اچھا اکثر ہا لوگوں کے جو پڑھتے ہیں نا جیم جیم پڑھتے ہیں ناک میں آواز جاتی ہے. ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے جیم کو ادا کرتے وقت. ٹھیک ہے. جی جی. جی. جیم جی. جیم جی. ہا ہے. قاف ہے. الگ سے آواز آنی چاہیے. ہے. ہے. ہا ہے. قاف ہے. ہے. یہ جو آواز ہے یہ آنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہے. ہا ہا جی. قا قا جی. دال دال را رو. زا رو. 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 را را جی. منہ کو گول نہیں زا کرنا. جی. را جی. زا سین شین صاد نہیں
پورا آپ کا منہ گول ہو رہا ہے، مجھے یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ آپ کا منہ گول ہو رہا ہے. صاد صاد صاد. صاد سیٹی بھی، سیٹی کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے، آخر میں کلکلا کرنا ہے، مد کرنی ہے. صاد. صاد جی. صاد صاد وہ نہیں کرنا. کیا پڑھنی ہے آپ؟ ضا ضا ہاں تو وہ نہیں کرنا. پو پو. صاد ضا ضا عين غين فا وائن. آپ جو بھی موٹا حرف ادا کرتی ہیں آپ کی جو ہے وہ ہونٹ گول ہوتے ہیں، ہونٹ نہیں گول ہونے چاہیے. جب آپ کی زبان کی جڑ اوپر کو اٹھے گی تالو تالو کی طرف، تو خود بخود جو موٹا حرف ہے وہ موٹا ہو جائے گا. غین غین. جی. غين فا قاف قاف قاف. جی. قاف جی. كاف لام ميم نون واو ها همزة يا حمزہ حمزہ. همزة جی. يا جی. چلیں، اور کوئی رہ تو نہیں گیا؟ آگے چلیں. جی. اب یہ تمام حروف جو ہم نے پڑھے ہیں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے. اور ان حروف کے تین چیزیں ہیں اب یہاں پہ جو مد نظر رکھنے والی ہیں. سب سے پہلے مخرج. مخرج وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے وہ حرف نکلتا ہے. ٹھیک ہے. مخرج وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے حرف نکلتا ہے. مطلب اگر زبان اور دانتوں کے ملنے سے نکل رہا ہے تو وہ مخرج ہے اس کا. کسی حرف کا اگر کسی حرف کا اگر اس طرح مخرج ہے کہ وہ زبان اور دانت ان کے ملنے سے وہ ادا ہو رہا ہے تو وہ مخرج ہے، زبان اور دانت. اسی طرح اگر کوئی حرف جو ہے وہ حلق سے نکلتا ہے تو اس کا مخرج جو ہے وہ حلق ہے. یعنی جہاں سے اس حرف کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کی آواز نکلتی ہے اس کے ملنے سے یا وہاں سے جیسے بھی نکلتی ہے، اس کو ہم مخرج کہتے ہیں. یعنی کہ حرف کے نکلنے کی جگہ. مخرج کا مطلب ہے حرف کے نکلنے کی جگہ. اور دوسری چیز ہے آواز. آواز یعنی کہ جب آپ کا منہ جو ہے اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو کہیں پر کسی چیز کی منہ کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی زبان منہ کے اندر کہیں نہ کہیں ٹکراتی ہے، اور جہاں پر وہ ٹکراتی ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں. اور جو اس سے جو ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ اس حرف کی آواز ہے، وہ اس حرف کی شیپ جسے کہہ لیں آپ وہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ جو حروف ہیں ان کے مخارج کون کون سے ہیں، کون سے حرف کا کون سا مخرج ہے. تو سب سے پہلے ہم ابتدا کریں گے منہ سے. ٹھیک ہے. منہ کے اندر جو خالی جگہ ہے منہ کی، ٹھیک ہے، منہ کے اندر جو خالی جگہ ہے منہ کی، وہاں سے تین حروف ادا ہوتے ہیں: الف واو یا. الف واو یا. یہ جب مدہ ہوں تو یہ منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی زبان فلاں جگہ پہ لگے گی
दांतों से लगेगी, तालू के साथ लगेगी, दाढ़ों के साथ लगेगी, या आपके दांत होंठों के साथ लगेंगे तो फिर अदा होंगे, बल्कि ये हरूफ मद्दा जो हैं अलिफ वाओ या, ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। जैसे अगर आप अलिफ अदा करेंगे तो ये तो अलिफ लाम फा है, लेकिन अगर आप इसकी अदायगी देखना चाहते हैं, इसकी अदायगी क्या है, तो आप इसको पढ़ेंगे बा। अब जब आपने बा अदा किया तो बा अदा करते वक्त जो जिसके नीचे एक नुक्ता है उसको अदा करते वक्त आपके होंठ आपस में मिले हैं, लेकिन जब आपके बा अलिफ बा है, उस बा जबर अलिफ बा है, जो आपने अलिफ अदा किया तो तब आपके, जब आपने बा जबर अलिफ बा अलिफ को अदा किया तब आपकी जो जुबान है वो कहीं भी नहीं लग रही, बल्कि मुंह का जो खाली हिस्सा है वहां से वो अलिफ अदा हो रहा है। इसी तरह बा पेश वो बू, जब आपने बा पेश अदा किया तो आपके होंठ आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, बा पेश वो बू। लेकिन जब आपने बू पढ़ा तो बू के अंदर जो ऊ की आवाज है, ठीक है, जो वाव की आवाज है वो मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रहा है। कहीं भी आपका आपका जो कोई मुंह का हिस्सा किसी दूसरे हिस्से के साथ नहीं लग रहा। इसी तरह या है, या जब मद्दा हो, ठीक है, यानी कि उससे माकबल जेर हो, बाजेर या बी, तो जब आपने बी अदा किया तो या को अदा करते वक्त कहीं भी आपकी जुबान या दांतों का या होठों का कोई भी हिस्सा कहीं पर टच नहीं होता। तो इसको कहते हैं हरूफ जौफिया, ठीक है। जौफ कहते हैं असल में पेट को, ठीक है, पेट को कहते हैं, यानी खाली जगह को कहते हैं जिसके अंदर कोई चीज नहीं होती, वो खाली जगह होती है, यानी जहां पर हवा होती है, ठीक है, वहां पर, वहां से जो हरूफ निकलते हैं, मुंह के जो पेट है, मुंह का जो खाली हिस्सा है, वहां से जो हरूफ निकलते हैं उनको हरूफ जौफिया कहते हैं। हरूफ जौफे दहन यानी मुंह के अंदर का खला, उससे तीन हरूफ अदा होते हैं, वाओ या अलिफ, ठीक है। जब ये मद्दा हो, जब ये लीन लीन हो तब ये यहाँ से अदा नहीं होते, ठीक है, तब इनका मखरज अलग है। लेकिन जब ये मद्दा हो तब ये हरूफ जो है जौफे दहन यानी कि मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं, ठीक है। और ये मद्दा किसको कहते हैं? मद्दा कहते हैं जब अलिफ हो, अलिफ साकिन हो, यानी उसके ऊपर कोई कोई जबर जेर पेश ना हो, खाली हो और उससे माकबल जबर हो, तब वो अलिफ मद्दा होगा। या मद्दा किसको कहते हैं? जब या खाली हो, उसके ऊपर कोई जबर जेर पेश ना हो, उसके ऊपर कोई भी हरकत ना हो और उससे माकबल जेर हो, तो उसको या मद्दा कहेंगे। और वाव मद्दा किसे कहते हैं? जब वाव खाली हो, उसके ऊपर कोई जबर जेर पेश या तनवीन कोई हरकत ना हो और उससे माकबल पेश हो, तो उसको वाव मद्दा कहेंगे। यानी अलिफ वाव या, ये जो तीन अगर मद्दा हो तो ये हरूफ जो है ये मुंह के अंदर से अदा होते हैं, जौफे दहन यानी मुंह का जो खाली हिस्सा है वहां से अदा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि हरूफ मद्दा अलिफ वाव या जो है ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। जी, किसी का कोई सवाल तो नहीं है इस मखरज से मुतालिक? सबको समझ आ गई है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आवाज आ रही है और जी क्लियर आ है रही है। जी। जी आवाज आ रही है। जी, यहाँ तक समझ लग गई है कि जी अलिफ वाव या का अल्हम्दुलिल्लाह। जो मखरज क्या है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अलिफ वाव या जो हरूफ मद्दा हो तो उनका मखरज जो है वो मुंह का खाली हिस्सा है। उसके बाद आता है मखरज नंबर दो। मखरज नंबर दो जो है, अब पहले हमने मुंह की बात की थी, मुंह के खाली हिस्से की, अब हम चले गए हैं अपने हलक की तरफ, यानी हमारा जो गला है, ठीक है, हमारे जो गला है उसकी तरफ चले गए हैं, ठीक है। तो उसमें अब उसके तीन हिस्से हैं गले के, ठीक है। एक सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जो मुंह के साथ मिला हुआ है, अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं आपको नजर आ रहा है, एक वो हिस्सा है गले का जो मुंह के साथ मिला हुआ है, ठीक है, जो जहां से जुबान स्टार्ट होती है, जहां पर कौवा होता है वहां उसके साथ जो मिला हुआ है, एक वो हिस्सा है। एक वो हिस्सा है जो दरमियान वाला हिस्सा है, ठीक है, जहां पर हमारा गरगरा होता है, ठीक है, ये दूसरा हिस्सा है। और तीसरा वो हिस्सा है जो गले का जो हमारे सीने के साथ मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हलक के तीन हिस्से हैं, इन तीन हिस्सों से अलग अलग हरूफ अदा होती हैं, और जो इन तीन हिस्सों से हरूफ अदा होती हैं उनको हम हरूफे हल्की कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफे हल्की। यानी इस गले के तीन हिस्से हैं, एक जो मुंह के साथ मिला हुआ है, एक जो उससे नीचे है यानी दरमियान वाला जहां पर हमारा गरगरा है, ये एक हिस्सा है, और एक वो हिस्सा है जो हमारे सीने के साथ मिला हुआ है। तो गोया
गले के 3 हिस्से हैं और इन तीनों से दो दो हरूफ अदा होते हैं और टोटल ये 6 हो गए क्योंकि 3 हिस्से हैं। तो इन 6 हरूफ को हरूफे हलकी कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं। जो हमारा हिस्सा सीने के साथ मिला हुआ है उसको हम कहते हैं अक्सा हलक। अक्सा का माना होता है दूर और बाईद, यानी अगर कोई चीज दूर हो उसको अक्सा कहते हैं, यानी अक्सा का माना है दूर और बाईद। अब ये दूर और बाईद क्यों कहा जाता है अक्सा हलक? उस सीने उस हिस्से को हलक के जो सीने के साथ मिला हुआ है उसको दूर और बाईद क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मुंह से दूर और बाईद है, इस वजह से इसको अक्सा कहा जाता है, अक्सा हलक कहा जाता है, यानी हलक का सबसे नीचे वाला हिस्सा। तो इससे दो हरूफ अदा होते हैं, हमजा, ह, हमजा, ह। जब आप इन हरूफ को अदा करेंगे अच्छे तरीके से तो आपके सीने में एक वाइब्रेशन आपको फील होगी। ठीक है, आपको ऐसे लगेगा कि आपके सीने से ये दो हरूफ निकल रहे हैं। कौन कौन से? हमजा, ह, हमजा, ह। तो हरूफ हल्की में से सबसे पहले दो हरूफ जो हमने पढ़े वो हमजा और हाँ हैं, और ये अक्सा हलक से अदा होते हैं। अक्सा हलक उस हलक के हिस्से को कहते हैं जो सीने के साथ मिला हुआ है और मुंह से वो दूर है, वो हलक का हिस्सा। ठीक है, उसके बाद मखरज नंबर 3। मखरज नंबर 3, अब हम नीचे से सीने से ऊपर को आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने उस हिस्से के हलक के बारे में बात की जो हिस्सा हमारे सीने के साथ मिला हुआ है। अब उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जो दरमियानी हिस्सा है। ठीक है, ना तो वो मुंह की तरफ है और ना वो सीने के साथ मिला हुआ है, बल्कि दरमियान में है। आप अगर अपने गले में अपनी जो गर्दन है वहां पर अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो एक हड्डी ऊपर को उभरी हुई है। ठीक है, और उसको हम गरगरा कहते हैं उर्दू जुबान में। ठीक है, ये जो गरगरा है, ये जो दरमियानी ये जो दरमियानी हड्डी है इसको हम कहते हैं वस्ते हलक। ठीक है, वस्ते हलक, वस्त का मतलब होता है कि दरमियानी हिस्सा, हलक का दरमियानी हिस्सा। और यहाँ से दो हरूफ अदा होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि नीचे जो अक्सा हलक है वहां से दो हरूफ अदा होते हैं और यहाँ से भी दो हरूफ अदा होते हैं। ठीक है, ये जो गरगरे वाली जगह है वहां से आइन है, आइन है, इनकी अदागी है आइन है। अगर आप आइन और हा को अदा कर रहे हैं और आपके हलक से, हलक का जो दरमियान वाला हिस्सा वहां से आवाज नहीं आ रही तो आपकी अदायगी दुरुस्त नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप उसकी अदायगी दुरुस्त करें। मैंने अभी आप सब लोगों से एक एक करके सुना है, रूफे हज्जी को सुना है, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि मैं हर एक पे उतना टाइम लगाऊं कि 10 15 20 मिनट एक बंदे पे लगाएं और उसको एक एक हरफ की उस तरह अदायगी बताएं, क्योंकि ये हमारे हफ्ते में एक लेक्चर होता है सिर्फ, और टोटल जो है सेमेस्टर के अंदर 16 लेक्चर्स है, तो उनके अंदर हमने तजवीज का कुछ थ्योरी भी पढ़नी है और प्रैक्टिकल भी पढ़ना है। लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि आप लोगों का जो सिलेबस है इसके अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल को रखूं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आइन और हा की। आइन और हा वस्ते हलक से अदा होते हैं। वस्त का मतलब होता है दरमियान वाला हिस्सा, यानी हलक के अगर 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों में से दरमियान वाला हिस्सा जो है उसको वस्ते हलक कहते हैं। और यहाँ से दो हरूफ अदा होते हैं, आइन है, आइन है। आप अभी अभी ये समझ लें, आप साथ साथ ये करके कोशिश कीजिए। आप अपने जो गला है, जो आपका गरगरा है, वहां पर हाथ रख के देखें क्या वहां से आवाज आ रही है या नहीं आ रही। इसको करके अदा करके देखें, आइन है, आइन है, है। जी, उसके बाद हम अपने अगले मखरज पे चलते हैं। अगला हमारा जो है हलक का वो हिस्सा है अदना हलक जिसको कहते हैं। अदना का मतलब होता है करीब, यानी करीब। वो हिस्सा है जो मुंह के बिल्कुल करीब है, यानी जहां से हमारा गला खत्म होके, हमारा हलक खत्म होके मुंह शुरू होता है, यानी जुबान की जड़ है जहां पे, उस हिस्से को कहते हैं अदना हलक। अदना का मतलब होता है करीब, यानी वो हिस्सा जो गले का वो हिस्सा जो मुंह के साथ मिला हुआ है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अदना हलक। तो इससे दो हरूफ अदा होते हैं, गईन, गईन, खा। ये उन्होंने, अगर आप इस तस्वीर को बगौर देखें जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, अगर आप इसको बगौर देखें तो ये उन्होंने उसको ब्लर किया हुआ है। ठीक है, जहां से वो अदा होते हैं, गईन, 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 खा, 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 गईन, खा, अग, अख, अग, अख। ठीक है, तो अदना हलक से दो हरूफ अदा होते हैं, गईन, खा। अभी तक हमने
जो हलक से जिन हरूफ के बारे में पढ़ा है वो 6 हरूफ है। सबसे पहले अक्सा हलक से 2 हरूफ अदा होते हैं, हमजा और हा, ठीक है। उसके बाद है वस्ते हलक से अदा होने वाले 2 हरूफ, आइन और हा, ठीक है। उसके बाद अदना हलक से, यानी ये हलक का वो हिस्सा जो मुंह के करीब है, वहां से 2 हरूफ अदा होते हैं, गईन और खा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आपने चीज नोट करनी है वो ये है कि हलक के कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। उसके बाद कौन कौन से, उनके नाम क्या है। सबसे पहला जो सीने के साथ मिला हुआ है उसको अक्सा हलक कहते हैं, और दरमियानी जो हिस्सा है उसको वस्ते हलक कहते हैं, और तीसरा जो मुंह के करीब वाला है उसको अदना हलक कहते हैं। दूसरी चीज इनके नाम, और तीसरी चीज इन तीनों हिस्सों से अक्सा हलक से हमजा हा अदा होते हैं, वस्ते हलक से आइन हा अदा होते हैं, और अदना हलक से गईन खा अदा होते हैं। ये टोटल 6 हरूफ हैं, और इन हरूफ के नाम हरूफ हल्की, इनको हरूफ हल्की भी कहा जाता है। ये नाम याद रखना जरूरी है, इन हरूफ को हरूफ हल्की कहा जाता है। जी, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? किसी को कोई चीज समझ ना लगी हो, आप समझते हो कि अदायगी में मसला है, अगर कोई अदायगी समझता है कि मेरी अदायगी दुरुस्त नहीं तो मैं एक दफा सुना लूं, अगर कोई सुनाना चाहे तो भी ठीक, वगरना फिर हम आगे चलते हैं। बेहतर ये है कि आप लोग, अगर किसी का कोई सवाल है या कोई अदायगी में मसला है तो वो बता दे, क्योंकि क्लास का वक्त खत्म होने को है, और बाकी मखारिज जो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर एक एक सर आधा मिनट है तो आप लोग जो है वो। जी सर, एक चीज जो है, अब जो सीने की तरफ से जो हलक के जो ये से जो आने